Good morning, everyone. How are you? I hope everyone is healthy at home. In the last class, we have seen that what are the different ways Python gives us to write a program that has been divided into two parts. That was interactive mode and the script mode. From now onwards, we are going to use only script mode. Script mode means that we are going to write program at one place, and after that we are going to see the output. That is known as execution, right? So class, today our topic is if conditional construct, which is based on the operators which we have done in the last class. That was types of operator like arithmetic operator, logical operator, comparison operators. So if conditional construct is based on that. So before starting a new topic, I just want to show you that what is the requirement of if. So for the time being, it's just a two line. That's why I'm just opening a Python interpreter over here. So let's open a Python interpreter screen here. So this is a screen of Python interpreter. So class, I'm just going to show you that how comparison operator gives us true or false, right? I'm declaring a variable with the name a, where value I have given 67. So my condition is this कि my a has to greater than 50. That is my condition. So a 67 is greater than 50. Yes, तो वो मुझे क्या देगा? True. ठीक है. So class, comparison operator, logical operator हमें क्या देते हैं? True and false. True means condition is okay, fine, satisfied. False means condition is not okay. ठीक है. लेकिन हम true और false का करते क्या हैं? What is the use of that true or false? So class, comparison operator just helps us where with the help of that we are able to just mention the conditions. Like true, it gives us like true and false. लेकिन अगर मेरी condition true है तो क्या होगा? Condition अगर false है तो क्या होगा? Let's take a very silly example. Imagine if you want to enter in a shopping mall, first condition is checking. अगर आपकी चेकिंग हो रही है एंड यू आर अ जेन्युइन पर्सन, तो कंडीशन हो गई ट्रू, तो बदले में हमें क्या मिलता है? एंट्री इन द मॉल, राइट? अगर कुछ प्रॉब्लम है, यू आर नॉट जेन्युइन, तो बदले में हमें क्या मिलता है? एग्जिट, और मे बी दे कैन कॉल द पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स और समथिंग एल्स, राइट? सो इट मीन्स कंडीशन सही होने पे ही डिपेंड करता है कि हम आगे क्या करेंगे, और कंडीशन गलत होने पे ही डिपेंड करता है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. तो आगे हमें क्या करना है? अगर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इफ. ठीक है ना. अगर मेरी ये कंडीशन सही हुई तो क्या होगा? गलत हुई तो क्या होगा? तो इस अगर को कंडीशन के साथ जब हम लगाते हैं तो इसी को हम बोलते हैं इफ कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स. सो इफ कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स आर नथिंग, दे आर यूज्ड टू गिव द कंडीशंस. कंडीशन तो हम दे सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर पे, लेकिन कंडीशन चेक करने के बाद जो ट्रू और फॉल्स होगा उसके बेस पे हमें आगे क्या करना है वो हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? कंडीशनल कंस्ट्रक्ट से. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. इफ यू आर ओपनिंग अ फेसबुक, फर्स्ट यू नीड टू एंटर द आईडी, ईमेल आईडी, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू एंटर द पासवर्ड. अगर दोनों सही हैं, सही का मतलब क्या हुआ? ट्रू. तो कंडीशन ये होगी ना बराबरी वाली. रिमेंबर, डबल इक्वल्स टू, जो लेफ्ट वैल्यू को किसके साथ कंपेयर करता है? राइट वैल्यू के साथ. ठीक है. सो हमने जो कंडीशन दी, अगर वो ट्रू है तो क्या होगा? बदले में हमारा होम पेज ओपन होके आ जाएगा. अगर हमारा आईडी या पासवर्ड दोनों में से कुछ भी गलत होता है तो इट विल गिव अस फॉल्स. फॉल्स में क्या होगा? मैसेज आ जाएगा दैट यू हैव नॉट एंटर्ड द करेक्ट आईडी एंड द password. So class, when we want to check any condition and based on its output we can decide what should happen, that we can do with the help of if statement. If shows the output only when the condition is true. ये rule है. For example, एक example, it's a very simple example. If you want to check that entered age by the user has to greater than 18, तो क्या मैसेज आना चाहिए? You are eligible for what? Otherwise क्या आना चाहिए? Not. तो भाई इस एग्जाम्पल में इफ यू विल फोकस, तो व्हाट इज माय कंडीशन? माय कंडीशन इज दैट एज हैज टू ग्रेटर देन व्हाट? 18. दैट इज माय कंडीशन.
ठीक है ना। अब ग्रेटर देन के लिए हमें कौन सा ऑपरेटर यूज करना पड़ता है? करेक्ट, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, सो हम कंडीशन किसके थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए, जो बदले में हमें क्या देता है? ट्रू या फॉल्स। लेकिन उस ट्रू के बदले में मुझे आगे क्या करना है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? इफ। ठीक है, व्हाट आर द पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर फॉर इफ? We can specify condition by using comparison operator, which is greater than, less than, double equals to, greater than equal to, less than equal to, which always gives either true or false as the output. We can specify, भाई condition आपकी दो हो, like Facebook वाले example में how many condition you have to mention at the same time? 2, which is my ID and the password. तो दो condition हो गई ना। अब भाई दो कंडीशन को कैसे हम यूज करें? तो उन दो कंडीशन को साथ में यूज चेक करने के लिए हम कौन से ऑपरेटर यूज करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि 3 होते हैं। अगर हमें दोनों कंडीशन एक साथ सही चाहिए तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एंड। जैसे कि फेसबुक में एक साथ हमें ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, वी वांट बोथ शुड बी ट्रू, करेक्ट एट द सेम टाइम। ठीक है, और कब यूज करते हैं? जब दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सही हो। ठीक है, नॉट तो जो भी हमारी कंडीशन है उसका अपोजिट कर देता है, तो रियली वी यूज नॉट। ठीक है, नेक्स्ट इज माई इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब क्या है? तो क्लास फर्स्ट मैं आपको सिंटेक्स बताऊंगी, उसके बाद हम वी आर गोइंग टू सी द यूज एंड मीनिंग ऑफ इंडेंटेशन एंड द कॉलन। नाउ हाउ मेनी स्टाइल्स ऑफ इफ वी हैव? सो बेसिकली 3 styles we have, but today we are going to complete only 2. फर्स्ट इज इफ। सिंटेक्स, पहले हम इफ लिखेंगे, इन ब्रैकेट का मतलब है हम यहाँ पर कोई भी कंडीशन डालेंगे, उसके बाद हम क्या मेंशन करेंगे यहाँ पर? कोलोन। ठीक है, कोलोन का मतलब क्या होता है? जब भी हम कंडीशंस देते हैं, अगर आपकी कंडीशन जितनी भी आपने देनी है वो खत्म हो गई है, तो वो फुल स्टॉप एक तरह से हमारे लिए कौन यूज करता है? कोलोन। आपने इफ लगाया, इफ के साथ जो भी कंडीशन देनी थी वो कंडीशन फिनिश हो गई, तो उसके बाद जस्ट आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू पुट व्हाट? colon. So after giving all the condition and if, you need to put colon which specify that all the conditions have been mentioned. ठीक है, now what is the meaning of indentation? अच्छा, if में मैंने condition लगाई, ठीक है, अब क्या करना है? तो मतलब मुझे if के एरिया में जाना पड़ेगा। जैसे if you take an example, bedroom और your room, वो रूम पता है कैसे बना? रूम इज अ पार्ट ऑफ योर होम और हाउस। ठीक है, अब होम की बात करें तो यू कुड बी हैविंग अ ड्राइंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, किचन, मल्टीपल रूम्स यू कुड बी हैविंग इन योर होम। बट आपके रूम की अगर मैं बात करूं तो वो आपका रूम क्यों है? बिकॉज इट इज बेसिकली सराउंडेड बाय 4 वॉल्स। ठीक है ना, तो पूरे घर में आपका एक स्पेसिफिकली एरिया बनाया गया है, लेकिन वो एरिया कैसे सेपरेट किया गया है? विद द हेल्प ऑफ वॉल्स। सिमिलरली इफ के साथ आपने जो कंडीशन लिखी है, अगर वो कंडीशन मेरी ठीक है तो मुझे इफ के अंदर आना पड़ेगा ना। तो कैन यू सी दैट कर्सर ओवर हियर? तो यहाँ पर इंडेंटेशन देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्पेस। कैन यू सी दैट? इफ मेरा यहाँ है लेकिन मैंने कुछ स्पेसेस देके टास्क को थोड़ा सा अंदर लिख दिया है, इसका मतलब टास्क इज कमिंग अंडर द बॉडी ऑफ व्हाट? इफ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सी दिस इज एन एग्जाम्पल। हमने लिखा मेरी कंडीशन है अगर एज ग्रेटर देन 18, बस यही है मेरी कंडीशन। अगर एज ग्रेटर देन 18 होती है तो क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए के लिए मुझे प्रिंट करवानी है लाइन, बट ये जो लाइन प्रिंट होनी चाहिए ये तभी होनी चाहिए जब एज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 18। अब कैसे पता चलेगा कि जो प्रिंट है वो इफ का पार्ट है? तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इंडेंटेशन। देखो इफ के अगर हम बिल्कुल मैचिंग नीचे आए तो देखो मैंने स्पेस दे रखे हैं। हाउ मेनी स्पेस आई हैव यूज? 3 स्पेस। आप चाहो तो एक भी स्पेस यूज कर सकते हो, इट्स ओके, बट मैंने यहाँ पर 3 स्पेस यूज करे। 1 2 3। क्लियर है? नाउ इट इज क्लियरली विजिबल विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन कि प्रिंट, दैट प्रिंट इज कमिंग अंडर द एरिया ऑफ व्हाट? इफ। ठीक है, लेट्स सी द एग्जाम्पल, लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। सो क्लास, आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल that I need to accept a value from the user and I need to check if it is greater than 18, then message should come that you are eligible for vote. So for this I'm going to open a notepad here. Let's open notepad. Okay. Now for the age I am taking a variable with the name A equals to, or you can take age also, it's your wish. Age equals to
I want that age has to be in number, so I'm internally typecasting from string to int. Input method is used to accept value from the user, तो enter your age, that is my message. आप चाहते हैं इज इक्वल टू लगाना तो प्लीज़ इज इक्वल टू, ठीक है, इस लाइन से एज आ जाएगी. अब आपको कंडीशन लगानी है. मेरी वैल्यू तो एज में आ गई, तो इफ एज ग्रेटर देन, अगर आपको 18 भी इंक्लूड करना है तो प्लीज पुट इज इक्वल टू. अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 18 तो उसके लिए हम सिर्फ ग्रेटर देन यूज करेंगे. ग्रेटर देन में इट विल नॉट इंक्लूड 18, ठीक है ना. इट मीन्स मेरी एज ग्रेटर देन 18 मतलब 19 ऑनवर्ड्स होनी चाहिए, तभी मेरी कंडीशन सही है. एक ही कंडीशन लिखनी थी, यस, तो प्लीज पुट कॉलन एंटर. अब मैं चाहती हूँ एक लाइन प्रिंट करवाना, तो मैंने लिखा अगर एज ग्रेटर देन 18 होती है तो क्या होना चाहिए. तो ये अगर हमें कौन दे रहा है, इफ. कंडीशनल हमने कंपैरिजन ऑपरेटर से ये कंडीशन मेंशन करी. ये कंडीशन हमें सिर्फ क्या रिटर्न करेगी, ट्रू, और क्या रिटर्न करेगी, फॉल्स. अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही हम इफ की बॉडी में जाएंगे. अब इफ की बॉडी में कैसे जाए, तो क्लास देखो ये दोनों अभी लाइन सेम लेवल पे है, तो मैं इसमें कितने स्पेस दे दूंगी, 2 स्पेसेस. नाउ इट इज क्लियरली विजिबल दैट प्रिंट इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ इफ, ठीक है. तो प्रिंट एलिजिबल फॉर व्हाट, क्लियर है इतना. सो लेट्स सी हाउ टू save this program and how to see the output of this program. So file, save. I'm saving it on desktop with the name proc3.py. Py stands for Python. Please don't forget to mention all files over here. Click on save. ये डेस्कटॉप पे आपको फाइल नजर आ जाएगी proc3. राइट क्लिक, edit with IDLE, edit with IDLE. The file is going to open in any moment. Let's wait for it. Are you able to see that? ठीक है? Okay. Now we are going to run this program by clicking on run module. So first it will syntax error is there. What is it? Invalid syntax. It is saying colon is invalid syntax. Why? Let's check. I have click on file, save. I have give just space over there. Okay. If it is saying invalid syntax, then okay. Why it is giving invalid syntax? I got the problem. I forgot to close here the bracket of int. ठीक है ना? वो int के और input के 2 brackets है ना. I have closed only one. That's why. ठीक है, तो हम वापस इसको ऐसे कर देते हैं, फाइल, सेव, ठीक है, रन मॉड्यूल, ठीक है. एंटर योर एज. दिस इज द फर्स्ट लाइन. आई एम एंटरिंग अ एज लाइक 20. तो एज वेरिएबल के अंदर हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 20. 20 ग्रेटर देन 18 है, ट्रू. तो हम किसके अंदर चले जाएंगे, इफ में. बिकॉज इफ तभी काम करता है जब कंडीशन सही हो. मेरी कंडीशन यही है कि अगर एज ग्रेटर देन 18 होती है तो एक मैसेज आना चाहिए, एलिजिबल फॉर व्हाट. प्रेस एंटर, मैसेज इज कमिंग. चलो, रन द प्रोग्राम अगेन. क्लिक ऑन रन मॉड्यूल. इट विल एक्सेप्ट द एज फ्रॉम यू अगेन. आई हैव एंटर्ड 4, ठीक है. ये इसने तो बदले में कुछ दिखाया ही नहीं. क्यों? बिकॉज क्लास इस प्रोग्राम में हमने सिर्फ यही मेंशन किया था कि अगर एज ग्रेटर देन 18 होती है तो क्या होना चाहिए. मैंने ये तो मेंशन किया ही नहीं कि अगर एज ग्रेटर देन 18 नहीं होगी तो क्या मैसेज आना चाहिए, ठीक है ना. ये तो वही बात हो गई. इमेजिन यूर ओपनिंग अ फेसबुक. आपने आईडी और पासवर्ड सही डाला, ठीक है ना, तो आपका पेज ओपन हो जाएगा. लेकिन बाय मिस्टेक अगर आपसे कुछ गलत एंटर हो गया तो कुछ भी मैसेज नहीं आएगा. अरे कुछ भी अगर मैसेज ना आए तो पीपल विल गेट कंफ्यूज. इमेजिन आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी तो ट्रू और फॉल्स पे ही होती है ना. अगर हो गई तो मैसेज आना चाहिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, नहीं हुई तो एरर का मैसेज आ जाए. तो इमेजिन आपने एक कंडीशन तो दे दी कि अगर ट्रांजेक्शन इज ओके, सक्सेसफुली हो गई है तो मैसेज आ जाएगा ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल. अगर नहीं हुई तो भी तो मैसेज दिखाना चाहिए ना. बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज वेटिंग फॉर द मैसेज विच हैज बिन गिवन बाय द कंप्यूटर. बिकॉज उन्हीं से उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मेरा काम हुआ है या तो काम नहीं हुआ,
ठीक है। सो इन माई कंडीशन आई हैव ओनली मेंशन द कंडीशन कि भाई एज जब ग्रेटर देन 18 होगी तो क्या होगा। यहाँ पर आउटपुट आए ही नहीं कुछ, बिकॉज मैंने उसकी कंडीशन ही नहीं दी थी। अगर आप चाहते हैं कंडीशन देना तो इफ के साथ वी कैन यूज वन कंडीशन, दैट इज माई एल्स। ओके क्लास, दैट इज हियर। इफ विद एल्स, एल्स कब आउटपुट शो दिखाता है, जब मेरी कंडीशन गलत होती है। कंडीशन ट्रू इफ के साथ, कंडीशन अगर गलत है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, एल्स। जैसे कि सिंटेक्स देखिए, इफ कंडीशन आप मेंशन करेंगे उसका टास्क, एल्स अलग से सेम लेवल का है, फिर उसके टास्क के लिए इंडेंटेशन, फिर आप टास्क। जैसे कि ये इफ एज इज ग्रेटर देन 18 तो इंडेंटेशन प्रिंट ये, एल्स सेम लेवल पे है, और इसके लिए एल्स के अंदर क्या आएगा, प्रिंट नॉट एलिजिबल। else के साथ no need to mention the condition because else is just opposite of if. Let's do the practical over here. This file is my open. If you want I can open the normal notepad file also. ठीक है ना, here. Okay, यही अभी हमने प्रोग्राम किया था. Okay. If age is greater than 18 then print eligible for vote. else का मतलब नहीं तो, नहीं तो के लिए हम जाएंगे एंटर, एल्स के अंदर कुछ लिखना है तो प्लीज इंडेंटेशन दीजिएगा, प्रिंट नॉट और नॉट एलिजिबल। ठीक है, फाइल सेव। तो लेट्स ओपन दिस फाइल इन दिस IDLE मोड, राइट क्लिक, ओपन विद एडिट विद IDLE, तो इट विल ओपन अ फाइल। तो क्लास देखिए, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, इंडेंटेशन से पता चल रहा है कि ये लाइन इज कमिंग अंडर द इफ, और इस लाइन से पता चल रहा है कि दिस लाइन इज कमिंग अंडर द इफ, कमिंग अंडर द एल्स। सो क्लास इफ और एल्स सेम लेवल पे है, तो मतलब ये सेम कैटेगरी के हैं, लेकिन प्रिंट इज कमिंग इनसाइड द इफ एंड दिस प्रिंट इज कमिंग इनसाइड द एल्स। सो क्लास नाउ इट कंप्लीट्स माई कंडीशन। If age is greater than 18, then print eligible for vote. Otherwise, it will print not eligible. ठीक है? Now my condition is accurately correct. Let's run this program. For the timing, I'm keeping it here. Enter age. I'm enter 4. तो message आ जाएगा not eligible, which is okay. Earlier nothing was displaying. Now the message is coming. ठीक है? Click on run. Run module again. If I'm entering like 77, so it is showing eligible for vote. Okay class? So class, this is like if and else. What we have done it. तो if अगर हमें कोई कंडीशन चेक करनी है और कंडीशन के सही होने पे क्या होना, इसके साथ मेंशन करते हैं if के साथ। अगर कंडीशन हमारी रॉन्ग है तो क्या होना चाहिए, उसके लिए हम क्या मेंशन करते हैं, else. Okay class? This is only how many conditions I have mentioned with if, only one. ठीक है, तो let's see another program. तो I'm going to open a notepad again where I'm going to show you how to use logical operator. ठीक है, या email ID और password वाला example ले लेते हैं, that is very nice. So class, for the email ID I'm taking an example like EID, email ID के लिए don't treat it as Eid. ठीक है, ओके, EID इज लाइक ईमेल ID. अगर कुछ कंफ्यूजन है प्लीज पुट अंडरस्कोर, दैट इज ऑल्सो ओके। ईमेल ID इज इक्वल टू, ईमेल ID तो कुछ भी हो सकता है, तो देयर इज नो नीड टू टाइप कास्ट एक्चुअली। ठीक है ना, इनपुट ब्रैकेट ओपन, एंटर योर ईमेल ID। ठीक है, पासवर्ड भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पासवर्ड, अगर मैं पासवर्ड की बात करूँ, लोग तो pass@1234 भी लिखते हैं, 1234 भी लिखते हैं, मतलब पासवर्ड कुड बी नंबर्स ऑल्सो, इन अल्फाबेट प्लस नंबर्स ऑल्सो। तो पासवर्ड के लिए आई एम टेकिंग पास इज इक्वल टू, देयर इज नो नीड टू टाइप कास्ट बिकॉज वो कुछ भी हो सकते हैं। एंटर योर पासवर्ड। क्लास नाउ बी वेरी श्योर, अब दोनों जो वैल्यू है मेरी स्ट्रिंग है। ठीक है ना, अब स्ट्रिंग में कभी भी हम ग्रेटर देन लेस देन तो नहीं कर सकते कि मेरा ईमेल आईडी तेरे ईमेल आईडी से बड़ा है। वी कांट डू लाइक दिस, राइट? सो क्लास, इसके लिए हम सिर्फ कंपैरिजन कर सकते हैं, वो भी इक्वालिटी का। इक्वालिटी का मतलब ईमेल आईडी इसके बराबर होना चाहिए और पासवर्ड इसके बराबर होना चाहिए। सो क्लास, नाउ माई कंडीशन इज इफ मैं चाहती हूँ ईमेल आईडी ABC होना चाहिए, abc@gmail.com,
और पासवर्ड abc123 होना चाहिए या abc@123। अगर ऐसा है तभी आपको वेलकम मैसेज आएगा, वरना वेलकम मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इफ email id equal to please put double quotes because it's a string। अगर email id abc@gmail.com ये होना चाहिए। साथ ही में अब आपको दोनों पासवर्ड और ईमेल आईडी एक साथ चेक करने हैं, तो प्लीज यहाँ पर हम एंड लगाएंगे। एंड का मतलब है जो मैं पासवर्ड की कंडीशन दे रही हूँ, पास इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग द वैल्यू abc@123। चलो ये कर लिया, ठीक है ना। सो यहाँ पर मेरी कंडीशन हो गई कि ईमेल आईडी abc@gmail.com होना चाहिए एंड द पासवर्ड हैज टू बी इक्वल टू abc@123। वी आर डन विद द कंडीशन, तो प्लीज पुट कॉलोन। अगर ऐसा है तो क्या मैसेज आना चाहिए, प्रिंट वेलकम abc। abc आई एम ट्रीटिंग एज अ नेम। अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज क्या मैसेज आना चाहिए, एल्स प्रिंट इनवैलिड आईडी एंड पासवर्ड। आप चाहो तो प्लीज इसको कंप्लीट कर देना, ठीक है, लाइक दिस, ईमेल आईडी एंड द पासवर्ड। दिस इज माय प्रोग्राम। तो हियर आई एम एक्सेप्टिंग लाइक ईमेल आईडी विच कुड बी एनीथिंग। तो मैंने कोई टाइप कास्ट नहीं किया, जैसे ये बस ले लो, एक्सेप्ट कर लो, विच इज नोन एज स्ट्रिंग। पासवर्ड भी कुड बी एनीथिंग, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टाइप कास्टिंग इट। मैं चाहती हूँ मेरी ईमेल आईडी abc@gmail ही होनी चाहिए और साथ ही साथ मेरा पासवर्ड abc@123 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन हैज टू बी करेक्ट एट द सेम टाइम। वो हमें श्योरिटी कौन सा ऑपरेटर दे रहा है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। अगर ऐसा है तो अगर दोनों ये सब चीजें ठीक है तो क्या मैसेज आएगा, वेलकम योर नेम abc। अदरवाइज मैसेज आएगा इनवैलिड ईमेल आईडी एंड द पासवर्ड। लेट्स सेव दिस प्रोग्राम। सेव, I'm saving it on my desktop with the name proc4.py. Don't forget to do all files. Click on saves. This is my file. Right click, edit with IDLE. Click here. ठीक है, this is my program. Now let's run the program. Invalid syntax, where it is, let's check. Pass is a keyword over here, okay। तो हम अपना confusion दूर कर लेते हैं, हम लोग single pass ले लेते हैं, okay। Pass is a predefined keyword, that's why it is coming in orange color। तो हम इसको सेव कर देते हैं। मैंने pass का डबल एस को सिंगल एस कर दिया। Now run this program, ठीक है। Enter your email ID abc@gmail.com, password abc@123। अगर ये दोनों सही हैं तो आएगा इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड, ओके। ये ईमेल इनवैलिड क्यों आया, लगता है आई हैव प्रेस स्पेस ओवर हेयर, ये मैंने खुद दिया था। तो भाई खुद ना देने की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ इज इक्वल टू डाल देना, ठीक है। ये मैंने खुद स्पेस दिया था ना, बिकॉज स्पेस इज ऑल्सो करेक्टर, दैट्स वाई। अब नहीं आएगा, मैंने इज इक्वल टू डाल दिया सो दैट मुझे अब स्पेसिफिकली यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर स्पेस करेक्टर दिया था ना, ये देने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम वंस मोर, ठीक है। अब करेक्ट है बिल्कुल, मुझे कुछ करने की, मैंने कोई स्पेस की प्रेस नहीं करी है। abc@gmail.com, abc@123। तो क्या आएगा, वेलकम abc। अगर मैं अब दोबारा इस प्रोग्राम को रन करती हूँ, रन मॉड्यूल हेयर, अब मैंने यहाँ पर देखो मैं स्पेस टाइप कर रही हूँ, अब स्पेस भी एक करेक्टर है, abc@gmail.com, वंस मोर स्पेस abc@123। अब क्या दिखाएगा, इनवैलिड ईमेल आईडी एंड द पासवर्ड, बिकॉज मैंने चेकिंग में कहीं पे भी यहाँ पर स्पेस नहीं दिया था, ठीक है। अगर स्पेस ऐसे देती तो ठीक होता, लेकिन मैंने कोई स्पेस नहीं दिया था। दैट्स वाई इफ यू विल फोर्सफुली मैनुअली विल एंटर द स्पेस, तो स्पेस भी एक करेक्टर है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ओके क्लास। सो क्लास फॉर द टुडे दैट इज ओके, ठीक है। तो वी हैव डन इफ, what is the meaning of comparison, conditional, what is indentation, colon, and
styles of if में we have done only 2 styles, if and the second part if with else. In the last class we are going to continue if and else. Thank you class.